अब बात लैंगिक समानता के मुद्दे पर जारी खास सीरीज की। आज बात साइंस टेक्नोलॉजी और उसमें महिलाओं की बराबरी की। सवाल है कि जब बात साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ्स की होती है तो इसे सिर्फ पुरुषों की फील्ड क्यों समझ लिया जाता है। इस पर BQ प्राइम की मुग्धा कालरा के साथ देखिए ये खास सीरीज। क्या हम औरतों का मैथ्स ब्रेन नहीं होता? क्या कोई ऐसी रिसर्च सामने आई है जो कहती है कि औरतें टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड होती हैं और सिर्फ आदमी ही साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के जीन्स के साथ पैदा हुए हैं? Why is it that when we talk about STEM, it is completely the playground for boys and men? Dear India Inc., let's talk about women in STEM. Data from the National Science Foundation shows that while 52% of women enrolled for science, technology, engineering and math courses for their graduation, only 29% of them actually joined the STEM workforce. Even at the C-suite level, only 3% of women hold the post of CEOs in the STEM industry. मतलब हो क्या रहा है? ऐसा नहीं है कि लड़कियां इन सब्जेक्ट्स में पढ़ाई नहीं कर रही हैं. Women make up nearly 43% of the total graduates in science, technology, engineering and maths in India, one of the highest in the world. But just 14% of scientists, engineers and technologists in research development institutions and universities. हाँ, स्कूलों में मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर पढ़ाने वाली आपको लेडी टीचर्स काफी दिखेंगी. इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि स्टेम सब्जेक्ट्स को पढ़ने वाली महिलाओं को अक्सर टीचरी करने की ही सलाह दी जाती है, क्योंकि आप तो महिला हैं, आपका काम तो बच्चों को देखना है, तो आप नेचुरली उन्हें पढ़ा भी लेंगी. लेकिन स्कूल की टीचरी तक बड़ी एक्सेप्टेंस है और हायर एजुकेशन तक पहुंचते पहुंचते ये फिर से बॉयज क्लब बन जाता है. At the Indian Institute of Technology, IIT Bombay, only 25 of the 143 professors are women. In IIT Madras, this number stands at 10.2%, with only 31 of the 304 professors in the institute being women. To date, none of the IITs or prestigious institutions like the Indian Institute of Science, Bangalore, or Mumbai's Tata Institute of Fundamental Research has had a woman director. तो ये प्रॉब्लम आखिर शुरू कहां से होती है? सबसे पहले तो घरों से होती है, जहां लड़कों से मैथ साइंस की पढ़ाई करवाई जाती है और लड़कियों पर ऐसा कोई दबाव नहीं होता और उन्हें अक्सर कहा जाता है कि वही सब्जेक्ट्स पढ़ो या चूज करो जो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. यहां तक कि लड़कियों के खिलौने आज भी घरेलू हैं और लड़कों के कामकाजी. लिटिल साइंटिस्ट फॉर बॉयज एंड शेफ एंड ज्वेलरी मेकर फॉर द गर्ल. बेचारे लड़के और लड़कियों दोनों पर ही अत्याचार है. जहां पढ़ाई के साल ज्यादा दिखते हैं, वहां लड़कियों को डिस्करेज किया जाता है until and unless she is above average or brilliant. और यही वजह है कि जब साइंस, टेक, इंजीनियरिंग और मैथ्स से जुड़े जॉब्स के लिए कैंडिडेट्स चुने जाते हैं, कंपनीज को लगता है कि एक आदमी ये काम बेहतर ढंग से करेगा. और जब महिलाओं को हायर भी किया जाता है तो उन्हें इम्पोस्टर सिंड्रोम से जूझना पड़ता है और उनमें कॉन्फिडेंस की कमी रहती है. Add to that the isolation they face. Key global workforce insights say that nearly 81% of Indian women in STEM faced gender bias in performance evaluations, and a large proportion felt that their companies would not offer them top positions. And that leads to a gap in pay. Women earn 15 to 30% less than their male counterparts. And unlike other industries where women start off on even grounds, but when it comes to STEM, the gender-based pay gap is right from the start. साइंटिफिक रिसर्च फील्ड में तो और भी बुरा हाल है. Only one woman, Marie Curie, has been honored twice with the Nobel Prize in Physics in 1903 and the Nobel Prize in Chemistry in 1911. Only 60 women in total have been awarded the Nobel Prize between 1901 and 2022. इंडिया में अब रिसर्च की सिचुएशन देखते हैं. All India Survey on Higher Education 2018-19 says just 3% of women enroll in PhD in science and only 6% opt for a PhD in engineering and technology. सरकार ने अपनी तरफ से महिलाओं को STEM फील्ड्स में आगे बढ़ाने के लिए कुछ कदम जरूर उठाए हैं. विज्ञान ज्योति स्कीम was launched by the Department of Science and Technology for the meritorious girls in high school to pursue STEM in their higher education. Gender Advancement for Transforming Institutions गति सरकार का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें एक चार्टर और फ्रेमवर्क तैयार किया गया है स्टेम फील्ड्स में जेंडर इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए.
And Gati works in close cooperation with the Knowledge Involvement Research Advancement through Nurturing Kiran program. किरण प्रोग्राम महिला साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स को अपॉर्चुनिटीज देने के लिए बनाया गया है, खासकर उन महिला साइंटिस्ट्स और टेक्नोलॉजिस्ट्स के लिए जो कि एक मिड करियर ब्रेक से वापस लौट रही हैं। लेकिन इस सब के बावजूद बदलाव तो आपसे ही शुरू होगा। पुश गर्ल्स इन योर फैमिलीज टू टेक स्टेम सब्जेक्ट्स एट स्कूल। उनकी क्यूरियोसिटी को इन सब्जेक्ट्स में बढ़ाइए, उन्हें हायर एजुकेशन के लिए पुश करिए। डियर इंडिया इंक, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप स्टेम रोल्स को जेंडर न्यूट्रल होकर देखें। हायरिंग के वक्त सिर्फ क्वालिफिकेशन देखें, मेल या फीमेल नहीं। जेंडर स्टीरियोटाइप्स को तोड़िए। सपोर्ट योर विमेन एम्प्लॉयज। सम टूल्स कैन बी women specific funding, fellowships and scholarships, flexibility at workplace, and more facilities given to them. Help them climb the ladder so they can be great role models for other women.